चक्र के बारे में, we have understood कि मूलाधार चक्र क्यों ब्लॉक होता है, राइट? कौन से डर इसको ब्लॉक करते हैं, राइट? अब मूलाधार चक्र को ओपन कैसे किया जाए? अंडरस्टैंड करो कि ये सारे चक्र जो है ना, they have certain lessons that you need to learn in your life. कुदरत ने हर चीज बड़ी साइंटिफिक बनाई है। वो चाहता है कि if you understand the lesson, the चक्र will get open. And the lessons are not infinite. वो बहुत ही कम lessons हैं, 3, 4, 5, 6 understandings only per चक्र. But if you understand it, एक तो होता है no. Most of the people only do knowing. बुक्स पे बुक्स पढ़े जा रहे हैं, बुक्स पे बुक्स, they are just increasing their knowledge. Understand, it is not about knowing. It is about understanding from every cell of your body. Yes, I understand it and I will follow it in my life. तो मूलाधार चक्र के 3 ही लेसन्स हैं, 3 चैप्टर्स, only 3 चैप्टर्स. आज अगर आपने ये 3 चैप्टर्स समझ लिए तो चक्र will be open, because automatically consciousness will know that this person understands the 3 chapters of life. So what are the 3 chapters of Mooladhara Chakra? What are the 3 lessons we have to learn to balance this chakra, which will keep us connected to Mother Earth and constantly give us the nutrition and the abundance of Mother Earth. तो ये 3 चैप्टर हैं. You have to honor these 3 foundations of your birth. आज मूलाधार चक्र के लिए आपको पेरेंट्स, आपको वर्क और आपको बॉडी, you have to understand, you have to honor these 3 foundations of your birth. So let us start one by one. First is parents. You know, the lord of this chakra is Lord Ganesh, and we know his story. How did he become Ganpati? दोनों भाइयों में लड़ाई हुई कि who is more superior. तो उन्होंने कहा okay, we will circle the world. तो कार्तिकेय तो अपने पीकॉक पे चले गए, मैं फटाफट करता हूँ, इसके पास तो छोटा सा चूहा है. और गणपति ने क्या किया? शिव और पार्वती को सर्कल किया. He said they are my world. And that made him the Ganpati. So understand, his circling the parents doesn't mean his parents are Shiv, Parvati and he circled them. Understand, your parents are your Shiva and Parvati. They are your Mool Aadhar. You come into this world due to a soul contract with your parents. आपका ऑलरेडी पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है. आप मुझे क्या सिखाओगे, मैं आपसे क्या सीखूंगा, ये डिसाइडेड है. सो अंडरस्टैंड कि योर पेरेंट्स जो हैं, दे टीच यू द मोस्ट वाइटल लेसन्स इन योर लाइफ. इट डजंट मैटर हाउ योर पेरेंट्स आर, यू हैव टू रेस्पेक्ट एंड यू हैव टू ऑनर योर पेरेंट्स फॉर गिविंग यू बर्थ. आज आप लाइफ में जो कुछ भी हो, whatever is your basic characteristics, is because of the environment provided by your family. अगर हमें पेरेंट्स की तरफ से कुछ दर्द होता है, पेरेंट्स की तरफ से कोई पेन होता है, हम ऑटोमेटिकली हम मूलाधार चक्र को बंद कर देते हैं. एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग इनस्टेबिलिटी इन लाइफ. पैसा आना रुक जाता है, आता है तो इमीडिएटली चला हो जाता है. And constantly we fear we don't have support, we have lack in life. You have to understand that your parents, they are finally your DNA. They will always love you. But your anger towards them, for whatever reason, it could be their disharmony with each other, it could be their behavior with a third party, it could be their own personal habits. But understand, the leela that your parents have played have made you who you are today. Did they struggle in their life to teach you the importance of education? That how important it is to educate yourself, to
to come out of these struggles. Today, are you well educated? Because your parents were not well educated, so you got yourself well educated to get a good job. Today, are you very good in your family life? You're very good with your spouse just because you saw your parents fighting? Are you a teetotaler because you saw your house getting disturbed because your father used to drink and abuse your mother? Did your parents teach you to be powerful by being victimized themselves? Are you a healer today because somehow you wanted to protect your parents? Your parents were weak. To protect them, have you become a healer today? Today, understand, whatever you have become is because of the environment your parents have provided. पर आज आपको पेरेंट्स की तरफ से एनी पेन है, कोई भी पेन है, अंडरस्टैंड दैट पेन कुड बी एनीथिंग. दैट पेन कुड बी माय पेरेंट्स डोंट लव मी, दे लव माय ब्रदर एंड सिस्टर मोर, दे डोंट सपोर्ट मी, जब मुझे चाहिए था दे वर नॉट प्रेजेंट. ये सारे के सारे जो फियर्स हैं, दे हैव टू बी रिमूव्ड. ये रियलिटी है कि पेरेंट्स कैन नॉट लव अ चाइल्ड मोर देन द अदर. इट इज जस्ट लाइक द 5 fingers. But yes, it is possible they feel comfortable with one child. Yes or no? It is not possible that the parents will favor one child, will not favor another child. Most of the families are suffering because they feel my mother likes my sister more, my father likes my brother more. It's all stories. Maybe they are more comfortable with them. It is their choice. You understand, since your parents have already provided for you till you were ready to stand on your own feet, they have done their job. उनका job खत्म. Stop expecting after that also. After that is expectation. Your parents are a partnership with you. They made you stand on your own feet. जब तक आप 18-20 साल के हो गए, आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, now you are on your own. Let them live. Let them choose how they want to live. Everything else is an expectation. So today, any anger towards parents is very harmful for your मुलाकात. आज अगर पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई गिल्ट भी है, even guilt blocks the मुलाकात. Today, if you feel I am not doing enough for my parents are in the village, I am not able to take care of them. Or you feel I am not able to take care of my parents because I am not able to make my parents stay with me because maybe my mother and my mother-in-law, my sister, my wife, they don't get along. ये भी होता है. But understand, in spite of this, you should not have guilt. It is not that you have to take care of them, you have to make them stay together, you have to move to the village and stay with them. ऐसा कुछ नहीं कि आपको अपना सारा छोड़ के पेरेंट्स की सेवा में लग जाना है, उनको घर में रखना है, even if your wife and all are not getting along. It's not like that. It is just that you should not have any pain related to parents. Because parents, you know, they give you one-sided love, one-sided. They only give. Your job is to allow. अब allow तो करो. जब हमारे अंदर guilt होता है कि I am not being a good son, or my parents are not good, I don't want to, talk to my parents. My parents have done wrong to my wife, or my parents have not done right. You stop that one-sided love coming to you. Your parents give the energy to the Mooladhara chakra. Your father is your right leg, and your mother is your left leg. आज अगर आपको बॉडी में पेन होता है, स्ट्रक्चर में पेन होता है, बिकॉज योर फैमिली यूनिट गिव्स यू द स्ट्रक्चर, इट ओरिएंट्स यू इन टाइम एंड प्लेस. आपका जो फैमिली यूनिट है वो ही आपको टोटली ओरिएंट करता है टाइम एंड प्लेस. अगर वो ही डिस्टर्ब है तो आप हमेशा डिसओरिएंटेड फील करोगे. फैमिली बिलीव्स, फैमिली ट्रेडिशंस, ये सारी की सारी चीज़ें ना दे ग्राउंड यू. तो आज आपको पेरेंट्स की तरफ कोई भी पेन है, गिल्ट है, उसको एड्रेस करो,
उसको देखो, make systems so that they are comfortable. Be happy that I am doing enough for them. See the constraints that I can't stay in the village, but how much ever I can provide for my parents, how much ever I can support, I am doing it, which is very legitimate. Once you are satisfied, your Mooladhara Chakra will open. The simple formula is, you should know that your parents love you. Your parents are behind you. If you fall, your parents will know. जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, they are with me, I'm a deserving son, and my parents are behind me, they are supporting me, they are with me, उसी से आपको इतना करेज आएगा to stand on your feet. जिसका मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, that person is very strong, he is very stable, he is very grounded. You know, he knows where he has to go. He is very much oriented. He is able to make money. He is able to, work for the society. He is able to feel one with everyone. Because of relationship with your parents, you make relationship with your siblings. You make relationship with your relatives. You make relationship with your society, with your office colleagues, with your customers. With everybody you make relationship. जो पहला जो रिलेशनशिप है लाइफ का विथ योर पेरेंट्स, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, यू विल ऑलवेज फाइंड प्रॉब्लम गेटिंग सपोर्ट. आज अगर आपको ऑफिस में लगता है आई एम ऑल अलोन, सारे लोग गुटुट बना के बैठे हुए हैं, आई एम नॉट गेटिंग अलॉन्ग विथ माई कलीग्स, आई एम नॉट गेटिंग अलॉन्ग विथ माई ऑफिस एनवायरनमेंट, विथ माई सोसाइटी, इट इज बेसिकली बिकॉज आपकी पहली फैमिली की रिलेशनशिप डिस्टर्ब है. और उसको सुधारने के लिए सबसे पहले यू आयरन आउट. आयरन आउट डजंट मीन दैट यू हैव टू टोटली sacrifice yourself for your parents. You have to honor your parents. Respect. Honor means I honor you for giving me birth. Only when you honor your parents, you are able to understand how to get support and how to give support. आज आपको पता है, लाइक एज अ फैमिली, एज अ ग्रुप, जब हम कोई भी काम करते हैं उस चीज़ में कितनी एनर्जी होती है. आज अगर आपने अपने फैमिली में किसी की शादी अटेंड की, आज अपने फैमिली में या अपने इवन कम्युनिटी में आप कोई प्रोग्राम अटेंड करते हो, कैन यू सी द एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय देम? कैन यू सी द एनर्जी दैट इज जनरेटेड जब सब लोग इकट्ठे क्रिकेट मैच देखते हैं, जब सब लोग इंडिया करते हैं? आपने वो एनर्जी देखी है ना? वो एनर्जी हमें मिलती है फैमिली मोमेंट्स. जब हम इकट्ठे पूरा परिवार मिलके कुछ काम करते हैं, सोचते हैं वी आर ऑल टुगेदर, वो जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी गिव्स यू दैट ग्राउंडिंग, मेक्स यू फील दैट आई हैव गॉट रूट्स. यू फील यू हैव गॉट रूट्स बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स. इवन चिल्ड्रन, आज इफ यू वांट दैट योर चिल्ड्रन आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी ग्राउंडेड, यू वांट कि आपके बच्चे जो है जिंदगी में आगे बढ़े, मोर एंड मोर यू शुड फॉर्म रिलेशनशिप विथ योर रिलेटिव्स. मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे दे डाउट देयर ओन रिलेटिव्स कि मेरे रिलेटिव्स अच्छे नहीं हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते, दे डोंट वांट अस टू प्रोग्रेस. ऑल दीज फीलिंग्स यू शुड. It is very, very important even for your children to get connected with their chacha, tauji, mama, mausi. It is very, very important. I tell you a particular incident. Around 5-6 years back, we celebrated, the birthday of my father. So, because we are all living in a metro city, we hardly get to talk to our relatives. So we hardly had any touch with our relatives. And my children used to say कि मम्मी I don't know my uncle, अपनी नानी, मुझे किसी के बारे में नहीं पता है.
them sacred ties. And since then we are all connected. But उसके बाद से I saw that बच्चे भी इतने grounded हो गए. We all felt connected. So it is very very important for all of us. Don't be this thing कि हम लोग बॉम्बे में time नहीं मिलता है. You should feel connected, that is important. It is not necessary to call them every day, to talk to them every day. हमारे पास time नहीं है. But it is very important to feel connected, because we as human beings, we are societal beings. We are societal. We need society. We want people. We can't stay alone, and we have to understand we are there for each other, because the sacred truth of the Mooladhara Chakra is all is one. On a physical level, we have to feel one. Because only when you feel one, you get that willpower, the strength and the courage. अब reality में सोचो कि इस world में there is not much things that you have to do on your own. आज आपका काम क्या है? You have to only take care of yourself. आपके कपड़े कोई स्टिच करता है, खाना जो आपकी सब्जियां हैं फार्मर उगा के देता है, आपका घर किसी ने बनाया है, आपको ऑफिस कोई लेके जाता है, आज आपकी बिजली कोई प्रोवाइड करता है, आपकी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय सम अदर ह्यूमन बीइंग्स. यस और नो? सो वी आर एक्चुअली नॉट लिविंग इन आइसोलेशन. वी आर लिविंग टुगेदर. वी आर ऑल वन. आपका काम केवल है कि सवेरे उठो, नाश्ता करो और जाओ काम पे. यू डोंट हैव एनी अदर थिंग दैट यू हैव टू डू. सब कुछ तो कोई ना कोई कर रहा है. आप जो खाना खा रहे हो, आप जो कपड़े पहन रहे हो, आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप जो ऑफिस जा रहे हो, एवरीथिंग कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है कायनात ने बनाया आपके लिए. डू यू रियलाइज दैट? आपको कितना काम खुद करना पड़ता है. चप्पल किसी ने बनाई है, कपड़े किसी ने बनाए, आपका लैपटॉप किसी ने बनाया, आपकी कार किसी ने बनाई, आपका घर किसी ने बनाया, आपकी बिजली, आपका ऑफिस जाने की व्हीकल, ऑफिस में भी बढ़िया बैठे हो एसी के अंदर, सीट के ऊपर बैठे हो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन. अब अपना काम तो करो. व्हाट इज योर वर्क? सो you have to understand that we are part of a network. We should feel supported by everybody to balance the Mooladhara Chakra. So dears, what is important is you have to forgive your parents for anything which you feel they have done wrong, which you have perceived they have done wrong. You have to forgive your parents.
See, it's not possible. जो आप कह रहे हो ना, see, understand, it could be a wealth which you are seeing in the external world, right? It will not be a very tangible wealth. See, we are talking about something which is very general, right? Which happens because this is a rule given by gods. ये हमारा perception है कि उन्होंने निकाला तो ये हुआ. It's actually in a spiritual thing it is not possible. वो wealth हमको दिख रहा है, वो कितना tangible है. You see all the wealthy people in this world. आप देखो wealthy people को, you will always see them standing with their mother. आप देखो जितने भी आपको wealthy लोग दिखेंगे ना, वो स्टेज पे अवार्ड लेने भी जाएंगे ना, माँ के साथ रहेंगे. They will always be deeply connected with their parents. This is a law given by the universe itself. So nobody is beyond that law. You have to honor your birth, and the foundation of your birth, the moola aadhar, are your parents. Any questions before we proceed to the second one? Forget about the egos of the relatives. You should know that I have relatives. They are with me. मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं फोन उठा के कजन को कुछ कहूँगा, चाचा को कुछ कहूँगा, ताऊ जी, they are there for me. That all is well is enough. Actually, you don't need anybody. People are with me, I am supported, it is enough. It is just a feeling. It's a feeling. I have people around me which will give you the energy and the strength. Is it clear? So basically, because of, if we have lack of family bonding, then a person always feels competition. He always feels threatened. कोई मेरा job ले लेगा, मैंने job join किया है, nobody supports me because they feel threatened. आप understand करो, मूलाधार चक्र की 2 states हैं, overactive और underactive. आज अगर किसी person का मूलाधार overactive है, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि everything is less. He will keep on hoarding. वो hoard करता रहेगा, खाना भी hoard करेगा, body से भी बहुत fat हो जाएगा. He will keep on buying things because he feels things are not enough. और another case है overactive का,
वो जानवर थ्रेटेंड हो जाता है कि बस आज ये मेरा इलाका जो है किसी और ने ले लिया। तो जानवर हमेशा अपनी टेरिटरी बनाता है। सो इफ यू फील थ्रेटेंड, इट इज एक्चुअली मूलाधार चक्र। You don't realize there is enough for everybody. There is enough. So basically, मूलाधार चक्र जो है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो पर्सन फील्स loneliness, he feels all alone, he perceives a threat or a competition with others. उसको लगता है उतना सा है, इसी इलाके में से हम सबको खाना। He doesn't see the abundance of Mother Earth. At the same time, he constantly feels bad. So once we have relationship with our parents, with our extended family, with our society, with our people, then we learn the lesson of oneness. We have to feel one. We have to feel like Indians. We have to feel like Maharashtrians. We have to feel like Mumbaites. We have to feel Hindu. We have to feel one religion. We have to feel. It's very, very important for our strength to get the courage to stand as supported, as a unit. We need this. Next, this is the first chapter. Second chapter. What we need to learn in Mooladhara Chakra. Right from the day we are born, जब से हम पैदा हुए, we are trained for only one thing, which is work. बच्चा बड़ा होता है, हम पूछते हैं बच्चे बड़े होके क्या करोगे? हम ये नहीं पूछते कहाँ खेलोगे, क्या हॉबीज होंगी, क्या एंजॉयमेंट होगा. We are only trained for one thing, which is work. शुरू से ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, नर्सरी भेज देते हैं, स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज के बाद इमीडिएटली जॉब पे लग जाता है. We are only trained for work. हम उसी से डरते हैं. We have to understand मूल आधार. What is the purpose of your birth? आप क्यों आए हो to work? You have come to work. जितना जल्दी समझ जाओ उतना पेन कम हो जाएगा. But what happens is, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा टाइम आता है जब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है. लेडी को लगता है मुझे घर भी संभालना है, मुझे ऑफिस भी संभालना है, बच्चे भी हैं, सास ससुर भी हैं. People get very overwhelmed. At the same time, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो भी इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं. मुझे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, बॉस की सुननी पड़ती है, वाइफ की सुननी पड़ती है, मदर बीमार है. तो लोग इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि वो छुट्टी लेके घर जाते हैं. स्टूडेंट्स हैं वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं जब वो बोर्ड एग्जाम्स का टाइम होता है कि फ्रेंड्स के साथ भी टाइम देना है, ब्रेकअप भी हो रहा है रिलेशनशिप का, IIT और एग्जाम की भी तैयारी करनी है. दे बिकम सो ओवरवेल्म्ड दैट दे सैक्रिफाइस द वर्क एंड देन द प्रॉब्लम्स स्टार्ट. लॉट ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम हैव हैपेंड बिकॉज लाइफ टेस्ट्स यू. लाइफ आपको टेस्ट करती है, आपको बहुत सारे काम देती है. बिकॉज आप प्रेयर तो कर रहे हो, पूजा तो कर रहे हो, गॉड पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे कटेंगे थोड़ी. Whatever you receive from Mother Earth, your work is the way you pay back to the
realize कि your पैर feels heavy because जितना भी आपका pending work है it slows you down, it drags you. जिन लोगों की procrastinate करने की आदत है उनके पैर, because legs are your work, your family is your structure, your skeletal system, but work is your legs. आपके पैर दुखते हैं. जब भी आप pending काम रखोगे ना, ये काम कर लूँगा बाद में और वो कंटिन्यूस वर्क रिमाइंड करता है, करना है इतना आपको स्ट्रेस देता है. भाई स्ट्रेस खत्म करो ना, जल्दी से करके साइड में करो ना उसको, उसका सिया पासा करो ना जल्दी से. So we have to understand कि जितना भी काम है, basically when we say I am lazy, it is not lazy. We have a fear of it. हमें वर्क करने का fear है. We have a fear. This is the chakra of flight or fight. Maximum people are in the flight mode. जब उन्हें लगता है बड़ा है, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर लिए, भाग लिए, लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ, भाग गए चूहे की तरह. तभी गणपति चूहे के ऊपर बैठते हैं, चूहे को क्रश करते हैं, चूहे को दबाते हैं. डोंट बी अ चूहा. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, शिप सिंक कर रहा होता है, चूहे दौड़ जाते हैं. तो जो लोग जो मूलाधार ब्लॉक होता है, जैसे ही काम आता है, लगता है ऑफिस में काम है, ये है, फटाफट छुट्टी ले लेते हैं, बीमारी कर देते हैं, कोई ना कोई घर वाले जो किसी दूर के रिलेटिव को मार देते हैं. तो कुछ ना कुछ करके वो चूहे की तरह दौड़ जाते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द चक्र ऑफ फाइट. जो लोग भाग जाते हैं वो चूहे. अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न टू फेस वर्क. वो आना चाहिए. वी विल डू वन मेडिटेशन नाउ. इट इज जस्ट वन मेडिटेशन जिससे हमको काम का डर निकाल दे. बस काम तो करना ही है. तो बेटर टू रिलीज द फियर ऑफ वर्क. जिस दिन आपने रिलीज कर दिया फियर ऑफ वर्क एंड यू से आई एम गोइंग टू डू द वर्क द डे इट इज कमिंग. मेरे पास आज काम आ रहा है ना, आई विल डू इट नाउ दिस वेरी मोमेंट. आई विल नॉट ट्राई टू सी कि इजी क्या है, लास्ट में करूँगा डिफिकल्ट. सबसे पहले डिफिकल्ट काम करके इजी काम तो ऐसे ही हो रहा है. तो जिस दिन यू लर्न हाउ टू रिमूव द बोल्डर्स एंड ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर पाथ, वो बोल्डर्स छोटे होते जाएंगे. और हमारे साथ क्या होता है, हम बोल्डर्स हटाते नहीं है. हमें प्रॉब्लम दिखती है, हम उसको ऐसे साइड में नहीं करते. फिर नेक्स्ट टाइम बोल्डर बड़ा हो जाता है, क्योंकि कुदरत तो छोड़ती ही नहीं है, तो बोल्डर बड़ा हो जाता है. फिर हम स्क्वीज करके निकलते हैं. अगली बार बोल्डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें यू टर्न लेना पड़ता है. और चौथी बार बोल्डर हमारे पीछे भागता है. चौथी बार बोल्डर जो है ना हमें क्रश करने पीछे भागता है. अंडरस्टैंड, भगवान तो किसी को छोड़ता ही नहीं है. He doesn't leave. Because आज आपकी जिंदगी में जो बोल्डर्स आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं because you have to learn how to remove them, no? What is obstacle? Obstacle means you don't have wisdom. Struggle means you don't have wisdom. तो आप अंडरस्टैंड करो कि ऑब्स्टिकल्स एंड स्ट्रगल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता. You don't know the way. भाई how will you know the way? भाई पत्थर को हटाओ, बोल्डर को हटाओ. जब आप बोल्डर को हटाओगे यू विल अंडरस्टैंड रास्ता कैसे राइट करना. अब बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो मैडम मैंने बहुत सारे बिजनेस किए लाइफ. पहले मैंने ना पेपर का शुरू किया, फिर मैंने इसका शुरू किया, फिर मिठाई की दुकान खोली, फिर मैंने ट्यूशन शुरू किया, फिर मैंने वो शुरू किया. मैंने कहा इतने क्यों शुरू कर रहे हो? मैडम होता ही नहीं है. थोड़ा सा चलता है, 6-8 महीने चलता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है. फिर कस्टमर कभी पैसे नहीं देता, कभी कस्टमर आते नहीं है, कभी पैसे रुक जाते हैं. मैंने कहा व्हाई डू यू लीव द जॉब, व्हाई डू यू लीव द बिजनेस? मैडम फिर उस समय पता नहीं, मुझे लगता है ये बिजनेस ज़्यादा अच्छा है तो इसको बंद करके उधर आ जाता. बट अंडरस्टैंड देयर इज नो परफेक्ट बिजनेस. आज पान वाला भी करोड़ों कमा रहा है और एक बहुत बड़ा गोल्ड और डायमंड वाला भी गरीब बैठा है. सो देयर इज नो परफेक्ट बिजनेस. सो व्हाट द पीपल डू इज, जैसे ही उनके साथ ऑब्स्टिकल आते हैं, जब धीरे धीरे जब आराम से पैसे आते हैं, और हर बिजनेस में
रनिंग। जब तक आपने वो ऑब्स्टिकल को फेस नहीं किया, आपने वो लेसन नहीं सीखा, हाउ विल यू नो, हाउ विल यू गेट द विजडम टू रिमूव द बोल्डर्स? अब वो बोल्डर आपके पीछे आ रहे हैं, भाग रहे हैं। So understand, all this is happening because you need to learn the lesson that the only purpose why you are born today is to work. आप केवल इधर पैदा हुए हो to work. आप केवल the way you work, what you do, it's already predestined. You have come with a unique purpose. You have to give back to the society. और जितने obstacles आएंगे, they will increase your wisdom to face the challenges. You have to face the challenges. You have to learn all the formulas of doing work, of facing challenges, of prioritizing things, of delegating things, to make systems. Even as a housewife, you can make systems. और बहुत सारे हाउसवाइफ हैं पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लेडीज घर भी संभालती हैं, बाहर कैसे संभालती हैं, पूरे दिन उनका किचन में चला जाता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। एवरीथिंग इज अ सिस्टम। इफ यू मेक थिंग्स स्मार्टली, खाने को भी आपने स्मार्टली बनाया, स्मार्टली कुक किया, कुछ चीज़ों को प्री कुक किया, कुछ चीज़ों को स्टोर किया। और हाउसवाइफ क्या करती है, रोज जाती है आज की सब्जी खरीदने, डेली आज ही रहेंगी, आज ही आटा मलेंगी, आज ही सब कुछ फ्रेश बनाएंगे, राइट? और सोच रही है कि भाई इससे मेरा परिवार हेल्दी है। ये नहीं कह रहे कि कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है, सबके घर सही है। इट्स जस्ट अ इल्यूजन। सो अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मेक सिस्टम्स। घर में, किचन में डोंट स्पेंड मोर देन 1-1.5 घंटा। मोस्ट अनरिवॉर्डिंग वर्क इज किचन। 1-1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करना है। जब मैं इंडोनेशिया में थी, जब मैं 10 ईयर्स इंडोनेशिया में थी, तो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी टू फाइंड अ हाउस जिसमें किचन है। अब पता है इंडोनेशिया में जो चाइनीज लोग जितने भी घर है वहाँ किचन नहीं होता, देयर इज नो किचन। वो लोग सारा खाना जो है उनका केटरिंग होता है। वहाँ ऑलरेडी पीपल डोंट कुक, हस्बैंड वाइफ मॉर्निंग में निकल जाते हैं। पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज ना स्लोली पीपल डोंट कुक। हमारे जैसा पूरा दाल सब्जी और सब कुछ कोई नहीं बनाता है, टाइम वेस्ट नहीं करते। उनका सारा खाना जो है कॉमनली कुछ लोग बनाते हैं, वो केटर करते हैं, सब कुछ केटरिंग होती है। उससे क्या होता है, पीपल हैव टाइम, लेडीज़ को टाइम होता है फॉर देयर वर्क, टू टेक केयर ऑफ देयर पैशन। उनको क्या करना चाहती हैं, दे कैन बेटर टेक केयर ऑफ थिंग्स। किचन ही नहीं होता घरों में, तो लोग इंडियंस को तो घर देना ही नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से हमें चुन चुन के घर देने पड़ते थे कि भाई हमें तो पूरा 4 कोर्स मील वाला किचन चाहिए। उनके पास केवल एक पैंट्री होती है, माइक्रोवेव होता है, तो बस खाना गर्म किया और खा लिया, बस खत्म। नॉट टू मच ऑफ बॉर्डर। सो अंडरस्टैंड दैट इट इज पॉसिबल टू मेक सिस्टम्स। हम इंडिया इतना झगड़ा हुआ है कि एक लेडी वाइफ या मदर पूरे टाइम बस किचन में रहेगी। 50% ऑफ द पॉपुलेशन पूरी वेस्ट है तो किचन कर रही है। इससे अच्छा कुछ लोग होते जो बैठ के सबका खाना बना देते, केटरिंग करते, और बाकी लोग कितने फ्री रहते लाइफ करने के लिए। वेरी श्योर जैसे जैसे इंडिया प्रोग्रेस हो रहा है, मोर एंड मोर लेडीज आर गेटिंग एजुकेटेड, वी विल फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। ओके, सो अंडरस्टैंड दैट फॉर दिस वी हैव टू लर्न द लेसन्स ऑफ वर्क। और सबसे बड़ा लेसन ऑफ वर्क है बी रेडी टू डू ऑल द वर्क दैट इज कमिंग। You have to release the feeling of being overwhelmed with work, and you have to release the habit